हम सब उन्हें बहुत सी फिल्मों के साथ उनको जोड़ते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में खुसूसी तौर पर जोड़ते हैं वो मंटो के साथ। उसके अलावा जो बहुत खूबसूरत बात है कि उन्होंने एक किताब भी लिखी है, मंटो एंड आई। 6 सालों का ये एक सफ़र है जो उन्होंने लिखी है, और वो किताब आपको बाहर रजिस्ट्रेशन डेस्क पे भी मिल सकेगी, जिसमें उसने बताया है। और उसके बावजूद मैंने उनसे पूछ के ये विकिपीडिया देखा था, उन्होंने कहा था सारा सही नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। She has served twice on the jury of the Cannes Film Festival, and of course she has also in 2011 been given this award by the French government, one of the nation's highest civilian awards. And of course she has done so much other work. She was the first Indian to be inducted into the International Hall of Fame of the International Women's Forum in Washington, D.C. उनकी सारी फिल्मों के मैं नाम लेने लगी तो यहीं पे वक्त खत्म हो जाएगा। आज का जो ये प्रोग्राम है, जो ये सेशन है, इसमें मैंने कुछ सवाल बनाए हैं। हमने बैठ के इसके बारे में बात भी की है। अगर वक्त बचा तो फिर मैं चाहूँगी कि आप लोग भी उनसे सवाल पूछें। मैं घड़ी देखती रहूँगी, अगर वक्त हुआ तो आप भी ज़रूर उनसे सवाल पूछेंगे। और मैं दावत देती हूँ नंदिता दास। बहुत शुक्रिया। नंदिता, मैं 2-4 लफ्ज़ जुमले तो बोले आपके बारे में, अब आप खुद ही बताइए नंदिता कौन? ये तो बहुत डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया कि मैं कौन हूँ। हम अपने बारे में तभी सोचते हैं जब दूसरे पूछते हैं, वरना और बहुत चीज़ें हैं सोचने के लिए। मैं एक रेस्टलेस सीकर हूँ। मुझे अलग अलग एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं, लोगों से मिलना, सोचना, अलग अलग इमोशन से गुजरना, अपने आप को दूर से देखना, दूसरों को देखना, साथ मिलके खाना, गाने सुनने, नज़मों को पढ़ना। तो हाँ, इसे वहाँ कहते हैं कि मैं मिला जुला कार्यक्रम हूँ। When we look at Nandita Das, we see your journey as an actor, as a director, and I would suggest, I'm probably sure that even as a director you have of course, and an author, and of course you also, any director is almost writing the films that they are directing. So who is Nandita best? The actor, the director, the writer, or all mixed together? The mother, the daughter, the friend. I think it's not necessary really to choose, because we can be all of those things. And I'm really not good with answering questions about favorites, because I think there is so much diversity, there are so many different ways in which you can live, and different things take precedence over the other things. Like right now I'm here, I'm a friend of the festival, I'm a guest in this country, but apnapan bhi hai. It's like returning back to Lahore after 8 years. When I'm directing, everything else goes back. I think direction in terms of work, agar aap puche, so it's the most challenging, but I think it's the most fulfilling. Because I have so many different interests, I think film brings them all together. You're telling a story, and when you're writing, then you're immersed in that process. When you're casting, then that's another wonderful thing. And as an actor, when you cast, you're very careful also how you get people on board. When you're shooting, when you're writing, when you're doing the subtitles, then all I can see is the subtitles. When you're doing the sound, और कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ सुनाई देता है. So I think it's just a lovely journey where all your different interests and concerns and passions come together. So I would say that I really enjoy direction. If one had to answer one. If one looks at Nandita, because I thought it was against injustice, it's against incompetence, it's against lies, and लगता था कि इन चीज़ों में तो जायज़ है गुस्सा होना. But I think as I'm getting older, I feel any form of violence and anger is also the beginning maybe of some kind of violence, and I feel
one has to keep exploring other ways of expressing that, other ways of expressing your anguish, because a lot of the times the anger is out of a pain and out of an anguish. So that's something I'm working on, long way to go, but I keep reminding myself. So yeah, that's me. Talking about Nandita the actor, do you go looking for a role, or does the role come to you? How you connect? And then, with your very beautiful, shall we say, scenario of your acting, which one would you like to talk about particularly that made you feel extremely satisfied with what you've done, so that I can go back and watch it? So I never wanted to be an actor. You know, I did my master's in social work, and acting was neither a dream or an ambition or a ख्वाहिश, nothing. So वो जैसे कहते हैं कि accidentally मैं actor बन गई. I used to do street theatre with Sardar Hashmi, but that was also not to become an actor, but it was an amazing experience to be able to take up different issues and just go into realities that were different from mine and perform those plays and, you know, feel impacted. And at that time तो हमको लग रहा था कि हम दुनिया बदल रहे हैं वो एक नाटक से. So acting, then I did one or two small films that was more to do with social issues. My first film as an actor that got released or was made properly or professionally was Fire. And when I did Fire, everyone said, oh, itni bold film as a first film, tum to badi courageous ho. But I didn't know there was going to be a second film. So मैं कोई act of courage के लिए नहीं कर रही थी. I just thought the story was interesting, even though I come from a very liberal family. My father is a painter, my mother a writer. But we never really talked at the time, and I'm talking about 1996 या 95 में जब दीपा मेहता मेरे पास पहली बार मतलब मैं उनसे मिली. And I was to be auditioned, and you know, I said, हाँ मेरा please audition कर दीजिए. After casting me, Shabana Azmi was cast as the other lead. And I said, अब तो audition कर दीजिए. I don't know whether I can act, and you know, she's someone I've grown up watching, and she seemed very confident, and I think that gave me the confidence. And after that, I did Earth and Hazar Chaurasi Ki Maan. In fact, even after 40 films, I never saw myself really as an actor. So when you're not seeking something, when you don't really have a goal, it also frees you from not really working towards it. So I never actually went and you know, sort of seeked out roles or reached out to people कि यहाँ थोड़ा कर दिया वहाँ कर दिया और फिर कुछ मिल गया. I never wanted to be an actor. तो वो मेरी अंदर की अपनी एक जद्दोजहद चल रही थी कि मैं करूँ नहीं करूँ. एंड उसमें 40 फिल्में पता नहीं कैसे हो गई, पर वो अलग अलग लैंग्वेजेस में थी, छोटी छोटी फिल्में थी, इंडिपेंडेंट सिनेमा की थी. I never really took to so much of the mainstream cinema. So I think acting was completely by accident. There's a lovely cat who's come to listen to us. Aja, I love this. और रोल अगर मुझे चुनना पड़े तो वो फिर फेवरेट्स वाली बात हो जाएगी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है. Because every film, you know, gives you something. Because it's not just the character. In fact, when I look at a script or a film, the role actually I look last, which is not the way an actor should be doing. People usually look at the role first. मैं हमेशा script देखती हूँ कि do I want to be part of this story? Does the story resonate with me? Then I look at the director. Will the director be able to implement this story? What is his or her vision? How are they thinking? And sometimes you don't get to know because it's a debut director, and I've done some wonderful films with debut directors and some known directors also. Sometimes it doesn't work out. And then I look at the role. So Fire was definitely a very important film for me personally. Also because I think I understood what is othering. Like I didn't realize that how deeply hypocritical we as a society can be, or what contradictions we can have, or how unempathetic we can be to anybody that we think is the other. And because of that, my journey in exploring discrimination and, you know,
and just these kind of prejudices that we are all plagued with. I have my own prejudices about things, and you have to keep catching yourself. जब हम generalize कर देते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो खुद को पकड़ना पड़ता है, and you have to kind of remind yourself that maybe this is just a notion. So Fire for me, that's why it was a very important film. Not only did I get to know more about the whole LGBTQ issue, at the time this vocabulary didn't exist, 96 में, but उसके बाद से जो फिल्में मैंने की, or even my social advocacy work had a lot to do with discrimination and these kind of issues as a theme. Then Earth, आप लोगों ने शायद देखी होगी, it was about partition. Bhakti Sidhwa, who passed away recently. It was her beautiful story, Ice Candy Man या Cracking India, जो भी कहें. And then 1084 की माँ, where I play a Naxal activist in Govind Nailani's film. Then Bhari Bhari, Shyam Benegal, who again passed away very recently. We are losing a wonderful generation that has given us our moral anchoring and our philosophical base. वो सब जा रहे हैं, तो अभी हमें अपने role models को उनकी यादें, जैसे फैज साहब, will never really go, because his works will keep sort of reminding us. So I got to work with some incredible people, Mrinal Sen. So her film में it's not the role or it's not the film, it's also that experience. उसमें कुछ गलतियाँ भी की, कुछ ऐसी फिल्में थी जो सोचा था कि अच्छी होंगी, but they didn't turn out the way I had imagined them to be. And at the time it was very annoying and heartbreaking कि अरे ये मैंने क्यों की. But in retrospect, actually I don't really regret that, because वो story शायद ज़रूरी थी, at least it's documented, I'm part of it. And also generally I don't like to regret anything too much, but also I did it for the right reasons. I think I believe in niyat a lot, कि आप अगर सही नियत से करें कुछ काम, तो उसका क्या हश्र होगा, what will be the outcome, we anyway don't have that in control. Of course, some of us, we have to be invested, especially in a film. Nobody cares about the journey. They only see the film. आप पर्दे पे फिल्म देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप उसका critical analysis करते हैं. You have no idea what we went through doing it. So it's strange that I've always been such a journey person, and then now I'm in this making films where it's nobody really cares that much about the journey, and the outcome does matter. But yeah, sorry, so I've kind of meandered a bit. नहीं. So then this was actually दूसरा सवाल मेरा यही था, पर आप खुद ही उस पर पहुंच चुकी हैं कि ये तो आपने कहा ना एक्टिंग, अब डायरेक्शन, then you are on the other side of the camera. तो obviously क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी इस काम में ज़रा सा तजुर्बा है. So then on the other side of the camera, is that more difficult? Because इसको मैंने अब ये कहना है, इसको ये इस तरह कहना चाहिए, लेकिन वो किसी और तरह से कह रहा है. तो डायरेक्टर का रोल ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को कंट्रोल करना, कि यार नंदिता दास को खुद ही करने दो ना जैसे वो करना है. So how did you manage that? Yeah, it is. To have this conflict कह लें या compromise कह लें, जाके compromise करना. मुझे लगता है दोनों ही नहीं है, इट्स कोलैबोरेशन. अगर हम क की ही बात कर रहे हैं तो ना कॉन्फ्लिक्ट है, ना कंट्रोल है, बट आई थिंक इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. क्योंकि जो एक्टर है वो खुद कुछ लेकर आता है. मैं उस तरफ रह चुकी हूँ, मेरे भी कुछ आइडियाज़ होते हैं. कई बार मैं लाइनें बदल देती हूँ, वो लाइनें ऐसी नहीं होती हैं जो कॉन्वर्सेशनल लगती हैं. सो and depends on the director. Most directors and most intelligent directors understand that just because you're the director, it doesn't mean you know everything. And sometimes you have an idea and the actor brings in something else, and if it's better than your idea, then you're more than happy, because we are all in the service of the film. कभी-कभी ईगोज लोग लेकर आते हैं, मुश्किल भी हो जाता है. कभी ये होता है, दिक्कतें तब आती हैं जब एक एक्टर को रिहर्सल ज़्यादा चाहिए और एक एक्टर पहली बार में वो स्पॉन्टेनियस बनना चाहते हैं. तब आप क्या करो, क्योंकि दोनों साथ काम कर रहे हैं. तो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ बोथ. और एक्टर्स एक्चुअली बड़े फ्रेजाइल बीइंग्स होते हैं और काफ़ी वल्नरेबल भी होते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने काम कर रहे हैं. कोई अगर नामी एक्टर है, आप उनसे अगर 10 बार टेक्स करवा रहे हैं, वो जब क्लैप होता है कि टेक मतलब शॉट नंबर दिस, टेक 10, उसी में कुछ हो जाता है. बिकॉज यू फील लाइक ओ माई गॉड, मैंने 10
अब तो खैर डिजिटल हो गया है, लेकिन शुरुआत में जो मैंने फिल्म में जब when I was an actor, वो फिल्म की आवाज़ होती थी, you know कि इतना ही फुटेज है, और इंडिपेंडेंट सिनेमा में तो और भी कम, you know, you didn't have the luxury of a lot of film, and दूसरा भी अगर हम टेक ले लेते थे तो लगता था कि अरे यार पहले टेक में क्यों नहीं हमने ठीक से किया. So I think it is definitely challenging to be in that position of a director and to see how to work around actors, but I think that's also the joy of it, because they also surprise you sometimes together, and sometimes किसी के साथ tuning हो जाती है तो आप उसको सिर्फ देखते हैं तो उनको पता है कि क्या करना है. So yeah, it's actually an advantage to be an actor and a director, because you know how to also communicate. कई मैंने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जो क्या चाहते हैं वो बता ही नहीं पाते हैं. वो या तो इतना वो कहेंगे आप अपने बचपन का ये करिए, जब आपकी माँ ने, you know, not every person is getting into that psychological story, or sometimes they just don't know, you do something different, और you know, just कई बार होता है कि कैमरा लगा देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इसमें आइए, यहाँ जाइए. But maybe what's natural to me is to stand up and say this, but because कैमरा ऐसे लगा है तो मुझे अब बैठ के बोलना है, but it doesn't come to me naturally because I feel I'm agitated enough and I should be standing. So therefore I try and work with the actors. For me they are very precious, and I try and work with them in a way that they are not like props कि मैं कैमरा लगा दिया. मेरे ख्याल में जिन्होंने आपके साथ एक्ट किया है या आपकी डायरेक्शन में एक्ट किया, अगला सवाल मुझसे होना चाहिए था, लेकिन चूँकि कोई नहीं है तो इसलिए आगे चलते हैं कि भी what is how is नंदिता एज अ डायरेक्टर. चलें छोड़ें, Can ask them. अगली दफ़ा याद रखना भाई, कोई मुझे याद कराए अगले फेस्टिवल में उसको आना है. जो भी है हमने कोशिश की थी वो नहीं आ पाए. नवाज नहीं आ पाए, रसिका सबका नंबर दे दूंगी मैं आपको. नवाज नहीं आ पाए, लेकिन 12 अगली दफ़ा ये मैंने नोट कर दिया. बात देखते हैं. एनीवे, तो अब ये देखें ना, आप जैसे लोग और जो भी सेलिब्रिटीज, इफ आई मे यूज द वर्ड, तो एक ज़िंदगी आपकी वो है, एक ज़िंदगी आपकी ये है, और कभी कभी दोनों में क्लैशेस भी आते हैं, और कभी कभी आपका जी चाहता है अल्लाह मेरे पास बताओ प्लीज़, मुझे छोड़ दो, वगैरह वगैरह. तो ये अगर इस किस्म के हालात या वक्त या कोई ऐसा मौका होता है जब आपको थोड़ा सा क्लैश होता है, आई डोंट थिंक सो, बट यू मे विश कि यार मैं सोशल वर्क की कोई टीचर होती मुझे कोई ना जानता. नहीं, मैं जिस तरह का काम करती हूँ, जिस तरह की फिल्में करती हूँ, और आजकल लोग ज़्यादा बॉलीवुड ही पसंद करते हैं, सो ऐसा कोई मुझे इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, अनलेस यू sort गो टू अ कॉलेज और यू गो टू अ प्लेस, यू नो, वेयर आजकल ये सेल्फी कल्चर हो गया है, तो ये थोड़ा सा कभी कभी अनोइंग हो जाता है. बट जब मतलब सच्चे दिल से कोई अगर मोहब्बत से, जिन्होंने आपका सच्ची में काम देखा है, वो अगर आते हैं तो इनफैक्ट दिल खुश हो जाता है, बिकॉज यू नो यू ऑल्सो यू आर वांटिंग टू टेल दीज स्टोरीज. आई मेक फिल्म्स और आई एक्ट इन फिल्म दैट आई रियली केयर अबाउट, तो आई डोंट डिसरिगार्ड द लव ऑफ द ऑडियंस एट ऑल, और आई मीन इट. बट कभी कभी लोग ऐसी कुछ, क्योंकि ये जो सेलिब्रिटी, हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आजकल मुझे पता नहीं, मुझे तो वर्ड से थोड़ी सी, otherwise try and stay away from it, but you know sometimes they tell you कि अच्छा हमने आपकी वो फिल्म देखी जो फिल्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो जिससे मैं कोई, I want to not sort of remember it, but just the fact you've appeared in a paper or on television, so the superficial kind of engagement, उसमें मज़ा नहीं आता है obviously. जो लोग कहते हैं कि अच्छा हमने ये देखा, एक तस्वीर ले लेते हैं, that is just because you are a known person and therefore I want to now show it that I've been with this person. That's not really a connection with your work or your concerns or any such thing. तो मेरी ऐसी कोई दो जिंदगियाँ नहीं हैं. मैं, you know, I'm the same person. There are some people who know me through other work, and you know, you would, I'm sure, vouch for it that you lead the same life. You, in fact, that अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, तो वो जो साइको फैंस होते हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी बन जाते हैं कि अरे आपने क्या काम किया, अरे आप, यू नो, तारीफ ही करते रहेंगे, एंड यू एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग दैट. तो पहली बात तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अपने आप को इतना सीरियसली लेंगे तो धीरे धीरे आप दीवारें अपनी इर्द गिर्द बना लेंगे. दीवारें बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे. सो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू बी ओपन and just to be open, and you know, and if you sometimes find something
something not so palatable, आप बोल दें. So I think when people are frank, most people understand it. And you know, you're saying it out of with kindness. So ऐसी कोई मुझे दिक्कतें नहीं होती. आप प्राउड नहीं कहते हो, बड़ी प्राउड है. नहीं, मुझे तो ये कहते हैं कि आप बड़ी डाउन टू अर्थ है. सभी को डाउन टू अर्थ होना चाहिए. बड़े बड़े हमसे 1000 गुना बड़े बड़े लोग आके चले गए, हम आधा टाइम तो उनको याद भी नहीं करते. तो हम क्या है, डाउन टू अर्थ इसीलिए बोला जाता है कि उनको लगता है कि फिल्म के लोगों को एक तरह का होना चाहिए. तो पर आप तो बड़े नॉर्मल है. तो पर हम सबको वही है, हम यहीं से आए यहीं जाएंगे. ये तो इसमें मतलब कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपने आप को इतना सीरियसली लेगा. एक साल पहले जब मैंने आपको कांटेक्ट, हाँ जी जी जी, यू वर इन लॉस एंजलिस. या 1 साल पहले. और मैंने कहा ये 2025 फरवरी की बात है, अभी 1 साल पहले क्यों आप मुझे. तो ये हर तीसरे महीने जो मेरी आदत है, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, दिसंबर तक जी आपने मुझसे कहा था कि मैं नहीं आऊँ, मैं शायद ना आ पाऊँ, क्योंकि मैं पता नहीं जंगल के कौन से जंगल में हूँ. आंध्रा के जंगल में वो शूट कर रही थी. वहाँ पे. लेकिन शायद मैं समझती हूँ ये फैज़ का फैज़ है, जिसने आपको बुला लिया. बिल्कुल मेरी खुशकिस्मती है. जब मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार वीज़ा लगवाना, आओ या ना आओ. सही. तो वीज़ा भी इनका मेरे ख्याल में यहाँ बैठे हैं अंदर के नहीं बनते. 1 दिन पहले लगाना, फिर 2 दिन पहले. जी जी. लेकिन बाहर लग गया. थैंक यू. तो आई वॉज टू एक्चुअली डू माई फिल्म. मैंने कहानी लिखी है, एक स्क्रिप्ट लिखी है. सॉरी नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रही थी कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है. और 6 महीने पहले जो मैं आपसे बात कर रही थी, तब मुझे लगा कि मैं फरवरी में पक्का शूट करने वाली हूँ. पर ऐसी फिल्मों के लिए पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. तो एक तरह से अच्छा हुआ कि नहीं मिले अभी तक. तो इसलिए मैं यहाँ हूँ. अगेन नो रिग्रेट. कुछ फैज़ ने बुलाया, कुछ इन सब ने बुलाया. जी जी, आपके प्यार ने बुलाया, लाहौर ने बुलाया, सब ने बुलाया. बहुत शुक्रिया आपका. मैं आज ये चाहती हूँ, जैसे तो बहुत जी चाह रहा है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं मंटो के ऊपर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करूँगी, क्योंकि कल इनका एक खसूसी सेशन है मंटो के ऊपर. तो मंटो, ये मंटो और पूरा मनाइएगा हमारा मंटो, तो एक तरफ सरमद होंगे और एक तरफ ये होंगे. तो हाँ, दोनों इस पर बात करेंगे कि मंटो सोचो. तो इस पर मैं इसलिए वहाँ तक नहीं जा रहा. हमें किताब भी लाई हुई है. मैंने बताओ ना, मंटो के बाद फिल्म बनाने के बाद एक किताब लिखी थी, पहली किताब मेरी, विच इज़ कॉल्ड मंटो एंड आई. इसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं और तस्वीरें अच्छी थी, इसलिए मुझे लिखने का मन भी किया. तो आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट इट्स अबाउट द होल जर्नी ऑफ मेकिंग द फिल्म. इसमें जो मंटो फैमिली से मैं मिली और यू नो फिल्म की भी तस्वीरें हैं. एंड 6 साल इस फिल्म पे काम किया. तो इसके बारे में, इस किताब के बारे में भी और फिल्म के बारे में भी कल हम बातचीत. ये सवाल क्योंकि कल कोई नहीं पूछेगा, तो ये मैं तुमसे सवाल पूछूंगी कि जब तुमने हमें फ़ोन किया, मैं और सलीमा जूम पे आए और तुमने हमसे इजाज़त ली कि मैं फैज़ को इस्तेमाल करूँ. जी जी, उसकी कहानी तुम सुना ना. बिल्कुल. तो फिल्म को हमेशा मैं सोचती हूँ कि कैसे मैं ख़त्म करूँ. सबसे मुश्किल होता है फॉर मी टू एंड अ फिल्म, बिकॉज ना मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ ना पेसिमिस्टिक हूँ. मतलब एक तरह से होपफुल हूँ. मुझे होप, आई थिंक होप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसे रखना पास बहुत ज़रूरी है. तो मायूसी से तो हम किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, पर इतनी ज़्यादा भी होप ना हो कि हमें लगे कि चलिए अब पॉपकॉर्न खाएं, अब खाना खाएं और दूसरी बातें करें. तो वो चीज़ आपके जहन में रहनी भी चाहिए, दिल में रहनी भी चाहिए. तो इसलिए आई ऑलवेज यू नो ट्राई एंड एंड इट ऑन दैट मिक्स्ड नोट ऑफ सेंस ऑफ होप बट रूटेड इन रियलिटी. और मैं एंड क्रेडिट्स, क्योंकि बहुत लोगों की मेहनत एक फिल्म में जाती है. यू नो आई नेवर राइट, दैट्स व्हाई फिल्म बाय नंदिता दास. मैं डायरेक्टर हूँ, आई ऑलवेज राइट डायरेक्टेड बाय नंदिता दास. अ फिल्म इज़ बाय मेनी पीपल. तो उनके क्रेडिट्स लोग बैठ के देखें और उस फिल्म जिस तरह भी ख़त्म हुई है उसको थोड़ा अपने अंदर लें. उसके लिए मैं हमेशा कोई एक गाना एंड में डालती हूँ जो उस फिल्म की रूह है. तो मैं चाहती थी कि बोल के लब आज़ाद है तेरे,
मैं डालूं, और इन लोगों ने 1 मिनट भी नहीं लिया मुझे प्रमोशन देने में। सलीमा आपा, बहुत बहुत आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल नीज़ा आपा एंड टू सलीमा आपा, उन्होंने कहा बिल्कुल तुम जो करना है उससे करो। फिर बीच में एक क्योंकि ऑब्वियसली मंटो साहब तो बहुत जल्दी चले गए, उनको जानने वाले बहुत कम लोग थे, तो आई हैड टू रीड अ लॉट एंड थ्रू दैट इवन द फिक्शनलाइजेशन ऑफ दैट हैड टू बी डन वेरी केयरफुली। तो उसमें एक था दैट अहमद नदीम काज़मी और मंटो साहब का एक सीन था जिसमें आई वांटेड अ नज़्म, एंड उसमें मैंने वो नज़्म डाली। दिस वाज जस्ट आफ्टर मंटो कम्स टू लाहौर कि ये वो शहर तो नहीं, एंड आप सब लोग जानते हैं, सो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वेरी हार्ट रेंचिंग ब्यूटिफुल पोएम। तो वो दोनों चीज़ तो फैज़ हैं, इनफैक्ट फैज़ साहब का कैरेक्टर भी है एक छोटा सा, जब उन्होंने मंटो के लिए कहा था कि ये फहशी नहीं है एंड लिटरेचर फहश नहीं होता, तो वो जो कोर्ट रूम सीन है उसमें भी फहद साहब है, सो ही इज़ वेरी वेरी प्रेजेंट इन द फिल्म। अब मुझे तो सीख मारे ना ले, उसी तो मेरा सेक्शन कर ले। सो अब थोड़ी सी बात हम करते हैं जो कि आपने मुझसे ऐसे खड़े खड़े परसों रात की हमारी बात हुई, कल भी हुई, जो भी हुई, कि आप शायद कुछ और करने जा रही हैं, आगे की भी तो सोचते हैं ना। तो अब अगला कदम आपका क्या है? 2026 तो हो गया जी, वो तो आपने आना है, 25 या आपने भी आना है, और आपके जो आर्टिस्ट है वो भी आएगा, खैर वो तो देखी जाएगी किसने देखा। लेकिन व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वेरी? So I'm planning a very small film. It's a relationship film. जो मैंने 20 साल पहले ये कहानी लिखी थी, और पता नहीं वो कहाँ छूट गई, और फिर जब गुजरात राइट्स हुए तो फिर आप अपने आप बन गई। जैसे मंटो साहब कहते हैं कि मैं अफसाना नहीं लिखता, अफसाना मुझे लिखता है, उस तरह कुछ हो गया। और फिर फिराक हुई, और फिर मैंने वो रिलेशनशिप वाली फिल्म उठाई, और फिर मैं नहीं कर पाई, एंड आई जस्ट समहाउ कुडंट डू इट। जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो शायद ये है वक्त उसका, और आई होप कि मैं 2025 में वो फिल्म बना पाऊँगी। इट्स अ सिंपल स्टोरी ऑफ अ कपल, सो ज़्यादा इससे नहीं बता पाऊँगी, बट होपफुली आप अगले साल इसे देखेंगे और आप बुलाएंगे, हम एक स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। मेरी पिछली फिल्म भी शायद यहाँ नहीं देखी गई है, ज़्विगाटो जो मैंने की थी, विच वॉज अबाउट अ फूड डिलीवरी राइडर, तो वो शायद अमेजॉन प्राइम पे है, पर शायद पाकिस्तान में नहीं दिखाई जा रही है। सो आप कभी बुलाएं तो मैं वो फिल्म भी दिखाऊंगी। हिंदुस्तानी फिल्म दिखाने के कुछ जी, बस बहाने चाहिए मुझे यहाँ आने के, तो आप देते जाइए बहाने। अरे बहाने तो चाहिए, लेकिन फिर कुछ असूल वो जो भी है प्रोटोकॉल्स होते हैं बाहर। चले, अब चूंकि वक्त कम हो रहा है और मैं चाह रही हूँ अगर किसी ने सवाल पूछना होगा तो खलो जाओ सवाल लो। अभी नहीं, मेरा सवाल तो जरूर माइक्रोफोन की तैयारी रखना है जुदा, ये बहुत अच्छा लगेगा कि आप सवाल पूछिए। बस मेरा एक आखिरी तो खैर जो भी है, लेकिन ये है कि अब ज़िंदगी की माशाल्लाह आप तो खैर बहुत नौजवान हैं, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं तो कुछ ना कुछ ख्याल पिछले आते हैं, अगले तो खैर कुछ कम आते हैं, पिछले ज़रा ज़्यादा आते हैं। Any regrets? Anything that you think you wanted to do? Any role that you thought you wanted to do? Social work आपने पढ़ा, तो social work का तो काम कुछ और होता है, या जो भी। So does Nandita have any regrets? Have any not things really. that she wants to do? Go to people she wants to meet, places she wants to go? Absolutely. So on so forth. बताइए। नहीं, बहुत ऐसी ख्वाहिशों की तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। दुनिया में इतनी जगहें हैं जहाँ मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पढ़ना मुझे इंक्रीज़ करना है। मेरी बिगन टू रीड लेस, लाइफ गेट्स टू क्लटर्ड, और उसके लिए जो एक इत्मीनान चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सो आई वांट टू डेफिनेटली रीड मोर, आई वांट टू लर्न सिंगिंग। मैं ऐसे कोरस सिंगर टाइप हूँ, मतलब पीछे पीछे गा सकती हूँ, लेकिन मैं गाना सीखना चाहती हूँ। मैं थोड़ा बहुत पॉटरी करती हूँ, जो बहुत एक सुकून की चीज़ है, तो वो मैं करना चाहती हूँ। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो करना बहुत चाहती हूँ, पर ऐसे कोई रिग्रेट तब होता है कि आई डोंट नो, इट्स लाइक गिल्ट, रिग्रेट, ये जो सब इमोशंस हम सब में हैं, बट आई फील दोज आर नॉट हेल्पफुल इमोशंस। तो उनसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूर रहूँ और उसको तब्दील कर दूँ शायद
कुछ ख्वाहिशों में बदल दूँ रिग्रेट्स, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, या जो गिल्ट है उसको भी बदल दूँ कि अच्छा उस जो इमोशन है उसको रिकग्नाइज करके हम आगे अब क्या कर सकते हैं, बिकॉज आगे ही हम चल सकते हैं, पीछे तो अब देखने का फ़ायदा नहीं. नॉट दैट वन डजंट फील दोज इमोशंस, बट हाउ लॉन्ग यू स्टे विद दैट इमोशन आई थिंक इज़ द मेन थिंग. तो जितनी जल्दी वो चली जाए दिमाग से उतना अच्छा है. सो no big regrets. I just hope that I can keep coming back and we can keep sharing our stories and our work and our thoughts. जी, किसने सवाल पूछना था? रिदा? आ रहा है. किसी और ने पूछना तो जरा अपना हाथ वाथ खड़ा कर दो. इधर नहीं है, उधर नहीं है, ज़्यादा ही हो गया. चलो इधर. जी जी बेटा, अपना तारुफ भी करवाइए और फिर सवाल पूछिए. मेरा नाम निनाज है और मैं बेसिकली तो कराची से हूँ, लाहौर मेरा ससुराल है. बट नंदिता, अभी आपने कहा कि फिल्में लोगों को जोड़ती हैं. जी बिल्कुल जोड़ती हैं, और आपका इतना बड़ा काम जिस पर बहुत कम बात हुई है यहाँ पर, जो लाहौर के लिए था अर्थ 1947, जिसमें शांता यानी आया का जो कैरेक्टर था, और दिलनवाज ने जब आया को मौत के हवाले किया था, लिटरली मैं उसको देखकर कई बार रोती हूँ. ये फिल्म मैंने पहले कराची में देखी थी, और मेरी फैमिली जो है वो 1947 के पार्टीशन से मुतासर होने वाली फैमिली है. मेरा ननियाल, मेरा ददिया, मेरी नानी ने बिहार से 9 साल की उम्र में अपने फादर के साथ हिजरत. सवाल पूछना था आपने तो फिल्म की कहानी सुना दी. मैं सवाल नहीं, मैं थैंक्स करना चाह रही हूँ नंदिता को शांता के कैरेक्टर के लिए, कि उस एक कैरेक्टर. बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ा शुक्रिया तो वापसी सिद्धू और दीपा मेहता का है, जिन्होंने लिखा और उसे बनाया और उसका हिस्सा मुझे बनाया. लेकिन आपने उसको पर्दे पर उतारा, और सॉरी फ्रॉम एवरीवन फ्रॉम लाहौर. थैंक यू. कि इस तरह की चीजें कितनी औरतों ने बर्दाश्त की, तो अभी भी करती हैं. जी जी, अभी ये भी तब की बात नहीं है, हम 75 साल हो गए और अभी भी हमारे दोनों के मुल्कों में औरतें बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं. तो शांता के कैरेक्टर के लिए, आया के कैरेक्टर के लिए, क्योंकि आप उसको पर्दे पर लेकर आई, तो थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया. जी रिदा.